A very good morning and Jai Hind 11th class. How are you? I hope you people are absolutely fine at your home. And in Zoom classes and in yesterday classes, I have explained you about the syllabus of economics in class 11. So students, I think you people are proper aware. We will discuss in statistics subject economics, and in economics you are aware that there are two books. First is statistic and another part B is microeconomics. So students, we discuss statistics in chapter first, introduction. In introduction, initially I have already explained in yesterday also. So what do you mean by economics? Normally economics cannot define easily, because if we are talking about the word definition, economics is derived from English language. In Greek word there are two words, oikos plus nomos. It is clear to students? Economics derived from two words, oikos plus nomos. I have explained in yesterday classes. Clear students? But I want to explain some revision for this. So economics is derived from English Greek word. Greek जो लैंग्वेज होती है उसमें से उसको निकाला गया, एंड किससे? टू वर्ड से. फर्स्ट इज ओइकोस प्लस नोमोस. ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट. सो नॉर्मली व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. हाउस होल्ड यानी घरों को मैनेज करना, हाउस होल्ड सेक्टर को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है. इट इज ए वर्ड डेफिनेशन. But if we are talking about a definition by the writers, so different writers have a different definition about economics in their time period. It is clear to students? Adam Smith is known as father of economics because Adam Smith ने इकोनॉमिक्स को एक डिफरेंट फॉर्म दिया है. अगर आप लोग पहले देखें तो इकोनॉमिक्स कौटिल्य ने लिखा था और स्टार्टिंग किया था, बट कौटिल्य का जो इकोनॉमिक्स था, कौटिल्य और चाणक्य, आप लोगों ने सुना होगा, these related to only political economics, but which economics is a systematic manner, and it will be provided by the Adam Smith. So Adam Smith is the father of economics. And if we are talking about the definition of economics, different writers have their time period, different time periods and different definition. सबसे पहले wealth definition. It is clear to students? Wealth definition is a very simple definition. Why it is name of wealth? Because they people are emphasized on the definition of wealth. They people are emphasized on wealth, and they believe that economics is the science of wealth. Economics is the science of wealth. Economics एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं. This believed by the Adam Smith. Clear? And Adam Smith wrote a book in 1776. What is name? I hope you are aware. An inquiry into nature of causes of wealth of nation. कौन सी? तो शॉर्ट में आप उसको क्या बोल सकते हो? वेल्थ ऑफ नेशन. This is book written by the Adam Smith in 1776. ये 1776 में पब्लिश हुई थी बुक, और इस बुक में 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने. इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. इट इज क्लियर? तो एडम स्मिथ एंड हिज friends and his all those person which are time period of the एडम स्मिथ. यानी जैसे केवल एडम स्मिथ ने ही डेफिनेशन नहीं दी, एडम स्मिथ के साथ में जो और पर्सन थे, लाइक मैं नाम बताता हूँ, आप लोग जैसे 12th करोगे इकोनॉमिक्स को डीपली पढ़ते चले जाओगे, सारे राइटर्स की नीड्स होगी आपको. जेएस मिल, रिकार्डो एंड माल्थस, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, उन सबने डेफिनेशन वेल्थ ही दी है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? देन आफ्टर डेफिनेशन आई वेलफेयर डेफिनेशन. वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल.
प्रोफेसर मार्शल ने डेफिनेशन दी आपकी, उसने वेल्थ डेफिनेशन ना देकर वेलफेयर डेफिनेशन दी। प्रोफेसर मार्शल ने एक बुक पब्लिश की बेटा 1890 में, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस बुक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ही एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन, किसकी स्टडी करता है? मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये लाइन देकर पूछ लेते हैं कि दिस लाइन और दिस डेफिनेशन गिवन बाय द एंड डैश, यानी आपसे फिलअप में पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। केवल यहां तक ही डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार पूछा गया था। इट इंक्वायरी हाउ ही गेट्स हिज इनकम। क्या इंक्वायरी करता है? एक तो बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, वो कैसे अपने बिजनेस करता है लाइफ में मैन का, ये बिहेवियर करता है, ये स्टडी करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। एंड इट इंक्वायरी हाउ ही गेट्स हिज इनकम, कैसे वो इनकम गेट्स करेगा, एंड हाउ ही यूज इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। समझ आया? वेलफेयर डेफिनेशन का क्या है कि नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में ये स्टडी करते हैं कि पीपल अपना बिजनेस में अपना वे ऑफ बिजनेस कैसे करता है या इनकम कैसे अर्न करता है और कैसे उसका यूज करता है। कैसे यूज करेगा कि उसका वेलफेयर हो जाए, यानी उसको प्रॉफिट मिले। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। बेटा पूरी बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको तो फ्यूचर में कभी पढ़ सकते हो। उसने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया था वेल्थ डेफिनेशन में इसको, उसने एडम स्मिथ को, कि उन्होंने केवल प्रॉपर्टी पे ही ज्यादा एम्फेसाइज दिया। बट दिस सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली प्रॉपर्टी, दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम इसमें ये नहीं पढ़ते कि प्रॉपर्टी बस केवल प्रॉपर्टी। एडम स्मिथ ने कहा कि ऐसे ही पैसा कमाना है, दिस सब्जेक्ट इज related to money, this subject is related to wealth, etc. But Professor Marshall says that economics is a subject. In this subject, we can study that how people welfare of it, अपना वो कैसे welfare करें, how people can earn money, वो कैसे earn करें, and how is use it, और उसको कैसे use करें कि अपना benefits मिल जाए। So you can say economics is the study of man in the ordinary business of life. It inquiry, क्या इसका एरिया है? How he gets his income, कैसे पर्सन इनकम गेट करता है, एंड हाउ ही यूज इट, और उसको कैसे यूज करेगा। आई होप 2 डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। फर्स्ट डेफिनेशन दी वेल्थ डेफिनेशन विच गिवन बाय द प्रोफेसर एडम स्मिथ एंड बुक वेल्थ ऑफ नेशन विच रिटन इन 1776। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय वेलफेयर डेफिनेशन। Welfare definition was given by the Professor Marshall. And what is the name of Professor Marshall's book? Principle of Economics. In Principle of Economics, it is published in 1890. 1890 में बुक पब्लिश हुई है और उन्होंने डेफिनेशन दी है, और उनकी डेफिनेशन को कीवर्ड क्या माना गया? वेलफेयर डेफिनेशन। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। Then after wealth definition and after the welfare definition, a new definition arises. This is known as scarcity definition. Very very important definition. आज 4 definition में सबसे ज्यादा scarcity definition ही सबसे important है। In scarcity definition, it is given by Professor Robinson. प्रोफेसर रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर रॉबिन्स या रॉबिन्सन बोल सकते हो। प्रोफेसर रॉबिन्स ने स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी है। पहले तो इनकी बुक देखिए, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। दिस बुक इज written by the Professor Robbins, an essay on the nature and significance of economic science in 1932. This book is published. अब बात करते हैं डेफिनेशन की, और मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इनकी। इकोनॉमिक्स, यहाँ से डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स को क्या माना इन्होंने? साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। एक कैसा सब्जेक्ट है? एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? किसी लैब की नहीं, ह्यूमन बिहेवियर की। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। मैं अपना साइंस वर्ड से बताता हूँ। एक इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको साइंस बोलें आप, कॉमर्स बोलें, आर्ट बोलें, आई डोंट नो, बट सीबीएसई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, हमारे यहाँ पे तो नहीं है। अदर स्कूल इसमें मैं एक बार प्रैक्टिकल लेने गया था, और ग्रेटर नोएडा, तो वहां पर उस स्कूल में 3 सेक्शन थे, एक साइंस का, एक ह्यूमैनिटीज का और दूसरा कॉमर्स का। तो उस प्रैक्टिकल में मैंने देखा कि तीनों सेक्शन में इकोनॉमिक्स थे। मुझे नहीं पता था, मैंने पूछा कि साइंस के स्टूडेंट हैं? हाँ सर, हमारे यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में भी और
कॉमर्स में भी और ह्यूमैनिटीज में भी सब स्टूडेंट्स पे इकोनॉमिक्स, मतलब दिस इज पॉसिबल, मींस इट इज इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आप साइंस का स्टूडेंट भी ले सकता है और आर्ट का भी ले सकता है, यानी ह्यूमैनिटीज का, और कॉमर्स में भी, कॉमर्स में तो होती है इकोनॉमिक्स। So it is clear to students, the economics is all rounder. So you can say here is a scarcity definition. Professor Robbins ने कहा भी है, economics is the science. Economics क्या है? It is a science. बस क्या डिफरेंस है? In study of human behavior. एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की। और अगर आप बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें किसकी स्टडी करते हैं? वहां पर लैब होती है प्रॉपर, केमिस्ट्री में केमिकल की और फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट के इक्विपमेंट होते हैं। इट इज क्लियर, वो अलग मैटर है आप लोगों का। वी आर टॉकिंग अबाउट स्कार्सिटी definition. In scarcity definition, Professor Robbins said that economics is the science which study human behavior. It is clear? यहाँ तक क्लियर होगा। रॉबिन्स ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है which study human behavior as a relationship। अब ह्यूमन बिहेवियर में किसकी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं? बिटवीन एंड्स होता है, यहाँ पे उसने वांट्स को दिया है, ह्यूमन वांट्स। अब आप ध्यान से सुनो पहले, देन आफ्टर मैं बताता हूं। बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस दैट इज रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। सो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए। ह्यूमन वांट्स कितनी होती हैं? लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आप लोग देखिए, आप अगर क्लास में होते तो बहुत अच्छा एनवायरमेंट रहता है। यस, एनीवे नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए भी। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हाउ कैन अनलिमिटेड? सपोज दैट आज आप लोगों के पास बहुत कम चीजें हैं। कोई पर्सन है, आपको छोड़ो, कोई पर्सन है, उसके पास सपोज वो पैदल जाता है, उसके पास साइकिल नहीं, उसको मन करेगा साइकिल मिल जाए। देन आफ्टर फर्स्ट उसकी सेटिस्फाई हुई, देन आफ्टर दूसरी वांट्स अराइज, अरे बाइक होनी चाहिए, देन आफ्टर कार होनी चाहिए, देन आफ्टर लग्जरी कार होनी चाहिए, देन आफ्टर हेलीकॉप्टर होना चाहिए, हवाई जहाज होना चाहिए, और मे भी बहुत सारी चीजें जो अभी हमें पता भी नहीं है। यानी ये तो एक एग्जांपल है। और वांट्स ऐसी भी होती हैं, सपोज दैट आप लोगों को भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपने सेटिस्फाई किया, थोड़ी देर बाद फिर से खाना चाहिए, या पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़े आपको दिलाए, कुछ दिन बाद फिर से चाहिए। यानी ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसी बेबी बोर्न होता है, न्यू बेबी बोर्न, उसको भूख लगी है, उसको खिलौने चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज जो मीन्स होते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो होती हैं, मीन्स जो होते हैं, यहाँ पे उसने रॉबिन्सन ने एंड्स को क्या बोला? वांट्स, यानी जिसका खत्म ही ना हो। एंड्स मीन्स वांट्स, एंड स्कार मीन्स लिमिटेड, और मीन्स रिसोर्सेज। यानी वांट्स कैसी हैं आपकी? अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज कैसे हैं आपके? लिमिटेड। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सो रॉबिन्स बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की। और एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बिटवीन एंड्स एंड स्कार मीन्स। इट इज क्लियर? वहां से अलग अलग भी बताता हूं आप लोगों को। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड वांट्स, एंड स्कार मीन्स, दैट इज मिनिमम लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कार मीन्स लिमिटेड, यानी किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? रिलेशनशिप बिटवीन, वेरी सिंपल, इन इकोनॉमिक्स वी हैव स्टडी बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड, एंड रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। तो यहां पर वांट्स को क्या बोला? एंड्स, और वांट्स दैट इज अनलिमिटेड, एंड स्कार मीन्स दैट इज लिमिटेड मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक और लिखा है यहाँ पर, विच हैव अल्टरनेटिव यूज। विच हैव अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या है? अब रिसोर्सेज की दो फीचर्स होती हैं, एक तो लिमिटेड है और दूसरा अल्टरनेटिव यूज। फॉर एग्जांपल पॉकेट मनी, पॉकेट में 100 रुपीज ही है, क्लियर? वो कैसे हैं? कि लिमिटेड। और वांट्स कितनी है? 100 रुपीज का आप लोगों को फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना है, पार्टी भी करनी है, बुक भी परचेज करनी है, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, यानी उसकी यूज कितने हुए? अल्टरनेटिव। लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड है, 100 है हमारी पॉकेट में, लेकिन उसका यूज कितना है? अनलिमिटेड। उसी 100 रुपीज से आप पार्टी भी कर सकते हो,
कुछ भी खा सकते हैं, कैंटीन में जाके उसी 100 रुपीज से बाइक में पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, उसी 100 रुपीज की बुक भी परचेज कर सकते हैं, कोई अदर इक्विपमेंट भी कर सकते हैं। यानी 100 रुपीज क्या है, रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जिसके बहुत सारे यूज है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ आई होगी। सारी डेफिनेशन में सबसे ज्यादा यही डेफिनेशन इंपोर्टेंट है और इस डेफिनेशन को बोलते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन was given by the Professor Robbins, and ये Professor Robbins की बुक है an essay on the nature and significance of economic science, and it is published in 1932. It is clear to students? So you people are aware that three type of definition: web definition, which are given by the Professor Adam Smith, और छोटी सी है economics is the science of wealth. Next, then welfare definition, which is given by the Professor Marshall, and Professor Marshall wrote a book of Principle of Economics. It was published 1890, and this is the definition. This definition is related to welfare of the society or welfare of the person. Next is scarcity definition. Scarcity definition is Robbins definition, which is given by the Professor Robbins, an essay on the nature and significance of economic science. This is book of the Robbins, and Robbins written this book in 1932. It is very important book, 1932, and the definition, in the definition he's given the scarcity definition. In scarcity definition, economics is a science in which study human behavior and relationship between unlimited wants with limited resources which have alternative use. It is clear to students? Last is growth oriented definition. Growth oriented definition is not more important, it is less important as compared to scarcity definition. Growth oriented definition given by the Professor Anthony Samuelson. Samuelson ने दिया है और Samuelson ने का टाइम पीरियड था 1915 to 2009, यानी इनके बाद उन्होंने डेफिनेशन दिए और नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है Samuelson को। डेफिनेशन है इसकी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चॉइस विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। यानी हम चॉइस तो करते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन इसी में से दिया। चॉइस किसकी करते हैं? हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। कौन सी वांट्स को हम पहले प्रायर करें, किस वांट्स को हम पहले फिल करें। यानी पहले आप लोगों को वही 100 रुपीज का एग्जाम्पल देखिए, पहले आप लोगों को बाइक में डलवाना है, यानी चॉइस करना है मैन को। वेरियस एग्जाम्पल होंगे आप लोगों के। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चॉइस विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? टू एम्प्लॉय स्कार, सेम वर्ड यहां पे ले रखा है, स्कार प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज। तो कोई ज्यादा उसने डिफरेंट डेफिनेशन नहीं दी है, उसी की डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्कार्सिटी की डेफिनेशन है। स्कार्सिटी में रॉबिन्स ने एक बिल्कुल अलग ही पहलू निकाला है, ना ही तो उसने मनी से रिलेटेड किया, ना ही उसने वेलफेयर से रिलेटेड। उसने कहा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स है, उस अनलिमिटेड वांट्स को और ह्यूमन्स के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका एडजस्टमेंट कराना हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सो आई होप ये क्लियर होगा आपको डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 राइटर्स ने डेफिनेशन दिया है, टाइम पीरियड 1976 से डेफिनेशन चली आ रही है और अभी तक 2009 तक। अभी इसके बाद कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं आई है जो यहाँ पर मेंशन हो जाए। क्लियर? सो देयर आर 4 टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज वेल्थ डेफिनेशन, सेकेंड इज वेलफेयर डेफिनेशन, नेक्स्ट इज scarcity definition and growth oriented definition। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का जब भी आप लोगों से या तो पर्टिकुलर नाम पूछा जाएगा कि इस राइटर की डेफिनेशन बताइए, या आप लोगों को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये चारों डेफिनेशन लर्न करनी होगी। क्लियर? आपकी बुक में तो बहुत सारी डेफिनेशन है। If you are talking about only wealth definition, in wealth definition different writer have different definition, but all writer emphasize on the wealth.
इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। वेल्थ डेफिनेशन में भी बहुत सारे राइटर ने वेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है, आप लोग बुक में देखोगे तो, बट सारी डेफिनेशन में इम्फिसाइज उनका वेल्थ पे ही है, इसीलिए सारी डेफिनेशन को कलेक्ट करके क्या बोला, वेल्थ डेफिनेशन। तो केवल एडम स्मिथ ने नहीं दिया, एडम स्मिथ एंड हिज फ्रेंड, उसके टाइम के जितने भी पर्सन थे उन्होंने सबने अपनी अपनी डेफिनेशन अलग दी है, बट सबकी डेफिनेशन का जो कीवर्ड है वो है वेल्थ। सबकी डेफिनेशन में आपको वेल्थ कहीं से भी मिल जाएगा। इट इज क्लियर। नेक्स्ट वेलफेयर डेफिनेशन, फिर स्कार्सिटी डेफिनेशन, और नेक्स्ट वन आपका ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन का काम तो खत्म हुआ आप लोगों का। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, योर इज ह्यूमन एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटी? यस डन। आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही आप किसी पर्सन को देखोगे, पर्सन को नहीं, जैसे ही आप कहीं पर भी किसी रोड पर भी गए हैं, एवरी पर्सन इंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, एवरी पर्सन engage in different type of activity. If you are you can see suppose that you can see in different person engage in different activity. For example, आप किसी भी चौराहे पर देखिए, हर पर्सन सुबह हुई और कोई कहीं पे सब इंगेज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी पे। क्लियर? उन सारी एक्टिविटी को, अब सारी तो हम लिख नहीं सकते कि भाई ये पर्सन ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसने ये किया है, ये ट्रेन में बैठ के वहां पे जा रहा है, ये स्कूटर पे वहां जा रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर मैं आप लोगों को बैठा दूं कि भाई ये टास्क है आपका, चलो ये एक्टिविटी आप बाहर जाइए और आज मुझे वुमेन की एक्टिविटी बताओ, बस आप ये बोल सकते हैं कि सर डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट वर्क, कि सब पर्सन इंगेज है। इट इज क्लियर? इन सारी एक्टिविटी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या डिफरेंस है इसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी। ये सारी एक्टिविटी जब भी पर्सन किसके लिए करता है? टू अर्न मनी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न money. It is clear to students? So you can say human activity, every person are engaged in different type of activity. These activity is divided into 2 parts, economic activity and non-economic activity. Clear? Economic activity are those activity which are related to earn money, and non-economic activity which are related to not earn money. ये आपके सिलेबस में नहीं है। For example, suppose that नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा कोई भी वर्क जो पैसे के लिए नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत से लोगों ने जो भूखे हैं उनको, जैसे पलायन हो रहा था, मजदूर इधर से उधर जा रहे थे, आप लोगों ने देखा था, तो उनको खाना खिलाया विदाउट मनी। क्लियर? यानी सोशल वेलफेयर जो ऐसे वर्क होते हैं, जैसे साधु सन्यासी, उनको खाना खिलाना वो पैसों के लिए नहीं करते हैं। सॉरी, जैसे अभी कावड़ चलती है, अभी तो नहीं, मतलब इस साल में भी कोविड, ड्यू टू कोविड-19 वो भी बंद रहेगी। कावड़ चलती है तो भंडारे हो जाते हैं, पैसे लेने के लिए उसको नहीं करते। क्लियर? चार्टेड वर्क हुआ, कहीं भी किसी मंदिर में दान दे दिया आप लोगों ने, यानी वो सारे वर्क जो पैसे के लिए नहीं होते। क्लियर? मदर ने आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्रेकफास्ट रेडी किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता क्योंकि मदर ने आपसे पैसा नहीं लिया, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो अपने सेटिस्फाई के लिए कर रही है, अपने बच्चों को खाना बनाने के लिए। इट इज क्लियर? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट इन सिलेबस। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 4 or 5. First is production, second is consumption, third one is investment, exchange,
and distribution. So these 5 type of activity is known as economic activity. So students, these 5 types economic activity which are related to earn money. अब earn money के लिए either is production. अब आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ कुछ लोग क्या होंगे सोसाइटी में, वो इंगेज होंगे प्रोडक्शन करने में. क्या करेंगे वो? प्रोडक्शन. कुछ लोग इंगेज होंगे कंजप्शन में, वो उनको यूज करेंगे. सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे. क्लियर कि भाई ये बंदा तो इन्वेस्ट कर रहा है. नेक्स्ट वन एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स गुड एंड सर्विसेज सेल एंड परचेज. जो सेल और परचेज करता है वो एक्सचेंज. और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बांट देना. जैसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया. भाई कोई पर्सन है, उसने अपना बिजनेस स्टेब्लिश किया, उसने पैसा लगाया, वहां पर लेबर लाया, लेबर लाने के बाद कैपिटल मशीनरी लाया, बिल्डिंग बनाया, उसने टूल्स लिए, रॉ मटेरियल परचेज किए और पैसा मतलब कोई भी प्रोडक्शन किया. जैसे सपोज दैट मार्कर उसने बनाया और बनाने के बाद उसने मार्केट से पैसा कलेक्ट किया. अब जो पैसा आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. रॉ मटेरियल वाले को दिया, जहां से उसने लेबर ली थी लेबर को दिया, उसने वेजेस प्रोवाइड कराई, सैलरी प्रोवाइड कराई, जहां से कैपिटल ले रखा है वहां से इंटरेस्ट दिया उसने, और जो बचा वो उसका प्रॉफिट हुआ. तो ये क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टूडेंट्स, दीज 5 type of activity is related to earn money. Now what do you mean by production? So production means it is a converted raw material into finished good. किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना रॉ मटेरियल से. फॉर एग्जांपल, पहले आपने कॉटन आया, कॉटन से क्या बनाया? क्लोथ. क्लियर? दिस इज ए प्रोडक्शन. पहले आपका इन द एग्रीकल्चर और इन प्राइमरी सेक्टर पहले शुगर केन प्रोड्यूस हुआ एंड शुगर केन से कन्वर्टेड किस में हो गया आप लोगों का? शुगर में. वीट प्रोड्यूस हुआ, वीट प्रोड्यूस होने के बाद या तो फ्लोर या उससे बिस्किट बन गया. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारे एग्जांपल है. प्लास्टिक से मार्कर बन गया, लोहे से आपकी जो भी है आपका आयरन से कार, फर्नीचर, वुड से आपका टेबल बन गया. इन बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो प्रोडक्शन आर दोज एक्टिविटीज. प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. तो दिस इज नोन एज प्रोडक्शन. Next is consumption. Consumption is when a person consume. Production is an economic activity because it is earned to money. Consumption means consume anything, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो. अभी आप लोग भी क्या कर रहे होंगे? फोन देख रहे होंगे. जब आप फोन देख रहे हैं मीन्स आप फोन को कंज्यूम कर रहे हैं. तो दिस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी. किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में आप एजुकेशन अर्न कर सके और फ्यूचर में आप गुड अर्नर बन सके. आप लोग मुझे भी यूज करोगे. कैसे यूज करोगे? आप मुझे यूज मीन्स एज ए गुड नहीं, मैं कोई सामान नहीं हूं, मैं क्या है? एक सर्विस. मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरी आप सर्विस यूज कर रहे हो. तो गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी कंज्यूम होता है. जैसे डॉक्टर की सर्विस हम लेते हैं, टीचर की सर्विस लेते हैं, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते. तो वो क्या हुआ आपका? उनको यूज करना कंजप्शन. पेन का कंज्यूम कर रहे हो आप, रजिस्टर ले रहे हो आप लोग, उसको कंज्यूम कर रहे हैं. हम ब्रेड का कंज्यूम करते हैं. यानी जो भी चीज होती है वो कंजप्शन आती है. और कंजप्शन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाला एक कंजप्शन है. कंजप्शन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन अ फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हो. फॉर एग्जांपल, जैसे या कोई बड़े आप इन्वेस्टर इन फ्यूचर आप लोग क्या करेंगे कि हमने 10 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट करें. करते क्यों हम इन्वेस्ट? ताकि फ्यूचर में गुड रिटर्न मिल सके. बिल्डिंग लगाया, टूल लगाया, दिस इज इन्वेस्टमेंट. It is clear to students? Investment is also an economic activity because investment, why we people invest? For earn money. It is clear? And next one is exchange. Exchange means sale and purchase of goods and services. गुड्स को परचेज करना. 1 पर्सन से आया, गुड्स हमने परचेज किया, फार्मर से आपने परचेज किया कोई भी गुड्स को और मार्केट में जाकर उसको दोबारा सेल कर दिया. तो ये क्या हुआ? सेल एंड परचेज. कोई बिजनेसमैन है, बड़ी मार्केट से परचेज करके लाया, देन आफ्टर उसने छोटी छोटी शॉप पे जाकर उसको सेल कर दिया. तो सेल एंड परचेज ही क्या हो जाएगा? एक्सचेंज. एक्सचेंज इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज एक्सचेंज, व्हाई वी पीपल एक्सचेंज? ड्यू टू अर्न मनी. It is clear to students? And last one is distribution. Distribution means आप लोगों को बताया कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना पैसे को. कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पहले कोई कंपनी स्टेब्लिश करते हैं. कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए क्या करते हैं हम? लैंड परचेज करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, टूल्स लेंगे, मशीनरी लेंगे, कैपिटल लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे और लेबर लेंगे. और बाय द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग. पिन टू प्लेन.
मार्कर, डस्टर, चेयर, कुछ भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैन, पेन, कार। किससे? बिल्डिंग होनी चाहिए, टूल्स होना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, लेबर होनी चाहिए एंड रॉ मटेरियल होना चाहिए। देन आफ्टर वी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? आफ्टर द प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग वी कैन सेल इन द मार्केट। सेल करने के बाद जो रिवेन्यू आएगा, उस रिवेन्यू का क्या होगा? मालिक का रहेगा, उस सब ओनर का रहेगा? नो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज पर्सन। उसको क्या कर दोगे आप? डिस्ट्रीब्यूट। जहां से लैंड लिया आपने उसको रेंट देना होगा, जहां से आपने मशीनरी कैपिटल ले रखा है और कैपिटल आपने पैसा लगाया है उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा। जो जितनी भी सारी लेबर्स हैं उसको क्या देना होगा? हमें उसको वेजेस और सैलरी देना होगा। और इन सबको देने के बाद जो बचेगा वो ओनर का प्रॉफिट होगा। तो ओनर ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा है? वो भी उसको अर्न मनी होती है। तो सो स्टूडेंट्स, these economic activity, I have said that there are two type of activity: human activity, whom every person have engaged in a different type of activity. It is clear? There are two type of human activity. हर एक पर्सन इंगेज होगा किसी न किसी एक्टिविटी में, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होगा या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली टू अर्न मनी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी। इसमें यहाँ पे एग्जांपल होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर नॉट कंसर्न with creation of money are known as non-economic activity. For example, teacher teach his son. मैंने अपने बेटे को पढ़ाया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। एंड हाउसवाइफ वर्क एक्सेट्रा, चैरिटेबल वर्क, क्लियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ द मनी; कंजप्शन, इट इज आल्सो क्रिएशन ऑफ द मनी; इन्वेस्टमेंट for a future earn money; exchange and distribution. Production means converted raw material into finished good. किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश गुड में, इट इज प्रोडक्शन। एक वुड ऑफ पीस है उससे टेबल बना दिया, एक वुड ऑफ पीस है उससे चेयर बना दिया। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? तो ये क्या होगा? प्रोडक्शन। कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? किसी भी प्रॉफिट पर्पज के लिए गुड्स को इन्वेस्ट कर देना। एंड एक्सचेंज, सेल एंड परचेज करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उन लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मनी, दिस इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एंड आज आप लोगों ने जो पढ़ा है, देयर आर टू टॉपिक। फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वर्ड डेफिनेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यस्टरडे कि oikos plus nomos, oikos and household to manage. तो word definition, then after different writer of definition. How many definition of economics? 4 type: wealth definition, welfare definition, scarcity definition and growth oriented definition. Clear? Wealth definition given by the Adam Smith, who is the known as the father of economics. Welfare definition which is given by the Professor Marshall. Scarcity definition which are given by the Professor Robbins, and growth oriented definition which given by the Professor Samuelson. It is clear to student? Then after I have explained one more topic: human activity. There are two type of activity: economic activity and non-economic activity. Economic activity which are further divided into 5 parts: production, consumption, exchange, investment and distribution. It is clear to student? So tomorrow we will study statistics. Clear? इकोनॉमिक्स का इसी में इतना ही है, बाकी सारी इकोनॉमिक्स आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे विच इज अ पार्ट बी। इट इज क्लियर? सो ये तो आप लोगों को, हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बट इकोनॉमिक्स में एक बुक आपको पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स। जैसे आप चैप्टर स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स का बुक बेसिक नॉलेज मैंने आप लोगों को दी है। देन आफ्टर टुमारो वी विल स्टडी मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट? सो थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ।